Good morning and welcome to all the students. Today we will discuss vector differentiation. For this, consider XYZ plane. It contains positive x-axis, positive y-axis and positive z-axis. This is x-axis. Y-axis is perpendicular to it. That is, they make a 90-degree angle. And z-axis is also perpendicular to x as well as y-axis. All the three make 90-degree angle with each other. So this is XYZ plane. Now in this plane, along x direction, we associate a vector denoted by I. Vector is denoted by a bar over it or a sign of heading over it. So I is a vector in x direction. I cap is unit vector in x direction. Now by unit vector we mean a vector whose magnitude is 1 and the direction of I vector is in the direction of positive x-axis. These are standard vectors. I is unit vector in the direction of positive x-axis. Similarly, J is unit vector in positive y-axis direction. So these are standard notations I, J, K. They are unit vectors in positive x, positive y and positive z direction respectively. Remember, a vector is denoted by a bar over it. If there is no bar, then it is a scalar quantity. If there is a bar, then it denotes vector quantity. A scalar has magnitude only. It is completely described by its magnitude. For example, temperature, mass, distance. These physical quantities are described completely by their magnitude only. But for physical quantities like velocity, acceleration, force or weight of the body, these are all vector quantities, because to describe these physical quantities with the magnitude, we need the direction also. It is magnitude and direction that define this vector quantity completely, whereas to define a scalar, magnitude is sufficient. Is it clear up to this point? Vector is denoted by a bar over it and a scalar quantity does not has a bar over it. I, J, K are unit vectors in x, y, z directions respectively. These vectors are standard vectors with unit magnitude and direction along positive x, positive y and positive z direction respectively. Up to this point, is it clear to all of you? Any questions? Any questions, dear students? No, ma'am. Yes. No, ma'am. Now this unit vectors are not only along x, y, z direction. There may be any vector and we can find unit vector in that direction. Simply unit direction म्हणजे काय, जे वेक्टर आहे अंडर कन्सिडरेशन त्या डायरेक्शन मधला युनिट मॅग्निट्यूड असलेला वेक्टर. फॉर एक्झाम्पल, मी एखादा वेक्टर घेतला ए. हा ए वेक्टर आहे. a1i प्लस a2j प्लस a3k. a1 त्याचा x कंपोनेंट आहे, a2 त्याचा y कंपोनेंट आहे, a3 त्याचा z च्या डायरेक्शन मधला कंपोनेंट आहे. तर a1i प्लस a2j प्लस a3k हा त्याचा पोझिशन वेक्टर झाला. फॉर एक्झाम्पल, हा XYZ प्लेन आहे, हे ओरिजिन आहे. ओरिजिन इज द पॉइंट विथ XYZ coordinates as 0, 0, 0.
and this is the point A whose coordinates are A1, A2, A3. This is ordered pair. A1 is its x distance, A2 is the y distance, and A3 is the z distance. So this is a point in xyz coordinate system, A1, A2, A3. I join this point with origin and this gives me a vector. This is position vector r bar. Its definition is A1 times vector I, because the magnitude is A1 in along x direction, isn't it? A2 times j, A3 times k, addition of all this. So A1I plus A2j plus A3k is position vector of the vector A bar. This position vector corresponds to the point A1, A2, A3. So this is the vector, and if I want its magnitude, it is obtained using this formula. What does magnitude indicate? Magnitude is distance of this point A1, A2, A3 from origin. Magnitude is denoted by mod of A bar or simply by A. Its distance from the origin is square root of A1 square plus A2 square plus A3 square. So this is the distance from the origin of the point A1, A2, A3. So if I want to obtain unit vector in the direction of this vector, then I can denote it by A bar, or I can denote it by A cap. A cap, remember dear students, cap denotes unit vector. So A cap, that is unit vector in the direction of vector A, is that vector divided by its magnitude. So if I have any random vector A, unit vector in its direction is the vector divided by its magnitude. So it is unit vector along A bar is A1I plus A2j plus A3k divided by square root of A1 square plus A2 square plus A3 square. So is the idea of unit vector clear? Shall I proceed further? मॅम ए कॅप कशासाठी वापरते? Cap is used to denote unit vectors. आणि बार, ए बार? ए बार इन जनरल कोणताही वेक्टर, ए कॅप हा युनिट वेक्टर साठी जनरली वापरला जातो, असंही त्याला आपण डिनोट करू शकतो, पण कॅप आलं तर ते युनिट वेक्टर साठीच आहे. ओके. Is this clear to all of you? This basics? Then we can proceed further. Yes, ma'am. Yes. So this is about position vector. This is XYZ plane. O is denoting the origin. P is any random point in this XYZ plane. So X, Y, Z denotes its distance from X, Y and Z axis respectively. Then the position vector is denoted by R bar, and it is X times vector I plus Y times vector J plus Z times vector K. This is how we denote position of any point, position vector of any point in XYZ plane. Now, as already discussed, scalar is a physical quantity which is entirely described by its numerical value. Only its magnitude is sufficient to describe it. For example, we will just say in 3 seconds, if it is related to time, we will just say in 1 minute. Now distance, we can say I walk 1 kilometer distance every day. It is sufficient in itself. We will not say I walk a distance 1 kilometer
towards the north. That is displacement. It is not distance. Distance is only the magnitude which is covered. Likewise, temperature is scalar, but force. To describe force, we have to specify the direction also, in which direction we are applying the force. For example, if I want to shift one object from one place to other, and that direction is towards the right, and if I apply force towards the left, then is it useful? No. So to describe force, I have to consider the direction as well. So this is about scalar and vector quantities. Now let us come for product of two vectors. If there are two vectors, say a1i plus a2j plus a3k and b1i plus b2j plus b3k, these are two vectors in space. So imagine a xyz plane. There is a point A, its coordinates are, when I join this point with origin, it becomes a vector a bar. Coordinates of this point are a1, a2, a3. And there is another point B. I join it to origin and it is b1, b2, b3. So this is the position vector corresponding to r bar corresponding to the vector A, and there is another position vector which corresponds to the point B, and the position vector is a1i plus a2j plus a3k, b1i plus b2j plus b3k. So there are two types of product between two vectors. One is scalar product or dot product. See, we use the symbol of dot to perform this product. That is why it is called dot product. A bar dot B bar is equal to A into B into cos of theta. A is magnitude of A, vector A. B is magnitude of vector B, cos of theta. Theta is the angle between the two vectors A and B. This is a definition of dot product. Its resultant is a scalar, that is the reason why it is called scalar product also. Magnitude of A, magnitude of B into cos of theta is the basic definition of scalar product or dot product. Resultant of scalar product is a scalar. For two vectors, dot product formula, suppose the vectors are given in this way and the angle between them is not specified, then how to perform dot product between the two vectors? X component of A into x component of B plus y component of A into y component of B plus z component of A into z component of B. So A bar dot B bar is equal to A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. This is how dot product is calculated. Now, why to study dot product? Dot product has a very important feature. When we take dot product, then it is product of magnitude of one vector and length of projection of the other vector in the direction of the first vector. This is the reason why we are studying this dot product. It gives you product of the vector with projection of the other vector on the first vector. So this point we should remember very well. We have to note that I is unit vector and dot product of this vector with itself is magnitude of I into magnitude of I into cos of 0.
because I makes 0 angle with itself. So cos of 0 is 1, remember, magnitude of I is 1 into 1. So I, dot product of unit vector I with itself, dot product of unit vector I with itself is 1. Similarly, dot product of j with j is 1 and k with k is 1. But if you see dot product of I with j, I with k, or j with I, j with k, k with I, or k with j, all are 0. For a simple reason, the angle between them is 90 degree and cos of 90 is 0. Cos of 90 is 0. So that is why dot product of I, j, k with the others is 0 and with themselves is 1. Is this clear? Shall I proceed further? Yes, ma'am. येस. इथे तुम्हाला एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की स्केलर प्रॉडक्टमध्ये एक वेक्टरचा मॅग्निट्यूड मल्टिप्लाइड बाय दुसऱ्याचा त्याच्यावर प्रोजेक्शन हे असतं. एच्या डायरेक्शनमध्ये बीचं प्रोजेक्शन हे देतं स्केलर प्रॉडक्ट, डॉट प्रॉडक्ट देतं. एच्या डायरेक्शनमध्ये बीचा प्रोजेक्शन. तर ए जर युनिट वेक्टर असेल तर बी वेक्टरचा एच्या डायरेक्शनमध्ये किती व्हॅल्यू आहे ते डॉट प्रोडक्ट, दोघांच्या डॉट प्रोडक्टचा रिझल्टंट असतं. नाव लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स. इट इज क्रॉस प्रॉडक्ट. इट इज denoted by a cross between the two vectors a bar cross b bar. Its resultant is a vector, that is why it is also called vector product. What is the definition? Magnitude of a into magnitude of b into sine of the angle between them multiplied by n cap. N cap is unit vector in a direction perpendicular to both. For example, if this is suppose vector A and this is suppose vector B, this is A and this is B. So there is a vector which is perpendicular to both. So cross product चा resultant हा दोघांना परपेंडिक्युलर असतो. हा ह्याला पण परपेंडिक्युलर आहे आणि ह्याला पण परपेंडिक्युलर आहे. एन कॅप ह्या डायरेक्शनचा युनिट वेक्टर आहे. A b sin theta times n cap vector is cross product of A with B, A bar with B bar. Remember, dot product is commutative. A bar dot B bar is equals to B bar dot A bar. It is commutative, but cross product is not commutative. They are not following commutativity rule. It is equal to minus. Dot product is commutative. मॅम एकदा वापस सांगू शकता? वेक्टर प्रोडक्ट हा क्रॉस प्रोडक्ट पण म्हटला जातो. वेक्टर प्रोडक्टचा रिझल्टंट हा वेक्टर असतो. त्या वेक्टरची डायरेक्शन परपेंडिक्युलर टू बोथ द इन्व्हॉल्व्ड वेक्टर्स असते. magnitude of A into magnitude of B into sine of theta into this many times n cap. आता A B sin theta n cap, this is scalar, say alpha times n cap vector. क्रॉस प्रॉडक्टचा रिझल्टंट व्हेक्टर असतं. त्या व्हेक्टरची डायरेक्शन दोन्ही व्हेक्टर्सला परपेंडिक्युलर असते. दोघांनाही परपेंडिक्युलर असलेला असतो तो आणि क्रॉसने डिनोट करतो आपण. एक ए बार क्रॉस बी बार. ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू बी बार डॉट ए बार. म्हणजेच डॉट प्रोडक्ट कम्युटेटिव्ह आहे, बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्युटेटिव्ह. म्हणजे ए बार क्रॉस बी बार ह्यानी जो वेक्टर बनणार आहे आणि बी बार क्रॉस ए बारनी जो वेक्टर बनणार आहे
हे दोन्ही डिफरंट वेक्टर्स असतील. इनफॅक्ट एक दुसऱ्याचे निगेटिव्ह वेक्टर असतील. Now for example, if I say I and if I say minus I, so what is minus I? This is positive x direction, isn't it? ह्या डायरेक्शन मधल्या वेक्टरला I म्हणायचं आणि ह्याच्या विपरीत डायरेक्शनने जाणाऱ्याला मायनस I म्हणायचं. So this is negative x axis, this is origin, this is negative x axis and unit vector in this direction is denoted by minus I. So this is about direction. Resultant of cross product is a vector quantity. Magnitude of that vector is AB sin theta and the direction of the cross product is a vector which is perpendicular to both the vectors. Now cross product साठी एक formula आहे and that formula is if A equal to A1I plus A2J plus A3K and B is equal to B1I plus B2J plus B3K, then A bar cross B bar is third order determinant IJK A1 A2 A3 B1 B2 B3. So we place XYZ coordinates components of A and B respectively and then we perform determinant. How is the determinant performed? I is situated in first row and first column. You delete this and take determinant of this. So it is A2 B3 minus A3 B2. See, I is first and so A1 B1 are not involved. A2 B3 minus A3 B2. 2 3 3 2. So this is about the coefficient of I, or you can say x component of the resultant of A bar cross B bar. इथे माइनस असतं, remember, minus J. Now J is situated in first row and second column, so we ignore that and with J, with a minus J we take A1 B3 minus A3 B1. So A2 B2 will be won't be there. There will be A1 B3 minus A3 B1. 1 3 3 1 2 3 3 2 1 3 3 1 like this. Plus K is situated in, for the kth component, it is situated in first row and third column, so you ignore it and take determinant of this. So it is determinant A1 B2 minus A2 B1. So this is how we obtain cross product of two vectors. Is this clear to all of you? Cross product का formula, दो वेक्टर्स अगर मैं दे दूं तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल पाओगे, क्योंकि इसी बेसिक्स के साथ हमको आगे बढ़ना है. डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है? ये दो वेक्टर्स है, A1I प्लस A2 टाइम्स J प्लस A3 टाइम्स K, B1I प्लस B2J प्लस B3K. तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? सपोज इसको A बार कहते हैं, इसको B बार कहते हैं. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, A बार B बार, ऐसे भी लिख सकते हो. इट इज़ मियरली अ नोटेशन. तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है? x component of A into x component of B प्लस y component of A into y component of B प्लस z component of A into z component of B. ये हो गया उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट. उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट आई जे के, यहाँ पर A का एक्स वाई जेड कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली, B का एक्स वाई जेड कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली, I का x कंपोनेंट A बार क्रॉस B बार इज इक्वल टू आयचं कोइफिशियंट काय असेल? A2 B3 मायनस A3 B2 मायनस जेचं काय असेल? A1 B3 मायनस A3 B1.
प्लस असतं केसाठी प्लस के a1 b2 minus a2 b1. So this is how we obtain cross product of two vectors. It is a vector quantity because you can find I, j, k in it. I, j, k are vectors along x, y, z directions respectively. So this is vector as I, j, k appear in its expression. तर cross product of I with I itself is 0 because what is the basic definition? A bar cross B bar is magnitude of A into magnitude of B into sine of theta times n cap vector. This is alpha. Alpha n cap is again a vector. So cross product of I with I will be 0, sine of 0. Sine of 0 is 0. So this quantity becomes 0. So this is a 0 vector. Cross product is 0 vector. 0i plus 0j plus 0k. So may it be I, may it be j, may it be k. The cross product of the vector with itself is equals to 0. And I cross j is k, I cross k is minus j. So this you can learn it for yourself. Shall I proceed further, dear students? Any questions? Is this मॅम ते आय जे के आहे त्याच्यामध्ये फक्त जेत मायनस असतं ना? yes, yes, only j is minus, plus minus plus. ओके मॅम. Okay, I will proceed further now. So this was about the basics. Now let us proceed to actual part. Now vector function. What is a vector function? Suppose there is a vector, say r bar, and r bar is depending on t. Give me a minute. Now before proceeding further, let me give you some explanation. Now suppose there is a particle in space. There is a particle in space and it is traveling through a path. This particle is traveling along the path, along this path, okay? So it starts from here. After certain time it will go here, then it goes here. So what does this mean? The particle is changing its position. Firstly it was at some point x1, y1, z1. Now it has gone to x2, y2, z2. The particle is changing its position, but this change in position can be with related to time. जैसे कि जब शुरू किया तो टाइम 0 था, 2 सेकेंड के बाद में उसने x2, y2, z2 पोजीशन ले ली, कुछ आगे के 5 सेकेंड्स के बाद में वो x3, y3, z3 पोजीशन पर चला गया. तो मुझे यहाँ पर कहना है कि जो भी पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है उसके x, y, z कोऑर्डिनेट्स टाइम पे डिपेंडेंट है. ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? यस मैम. तो उसकी पोजीशन टाइम डिपेंडेंट है. तो अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि एक्स वाई जेड, तो ये महज कोऑर्डिनेट्स नहीं है बट वो फंक्शंस हो गए टाइम के. अब सपोज एक मुझे उस पाथ का इक्वेशन पता है, मुझे पता है कि उस पाथ पे ट्रैवल करने वाला पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट t² है, y कोऑर्डिनेट 2t है सपोज, z कोऑर्डिनेट
टी क्यूब है, तो वो पॉइंट का जनरल पोजीशन वेक्टर कैसे बना पाऊंगी मैं? इन जनरल टी स्क्वेयर टाइम्स आई प्लस 2t टाइम्स j प्लस टी क्यूब टाइम्स k। ये हो गया उस पाथ पे ट्रैवल करने वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर इन जनरल। मतलब टाइम जब 0 था तो वो कौन सी पोजीशन पे था? टी स्क्वेयर टाइम 0 t 0 0 i प्लस 0 j प्लस 0 k। 2t भी 0 होगा, टी क्यूब भी 0 होगा। 1 सेकेंड के बाद में वो कौन सी पोजीशन लेगा? 1 का स्क्वायर 1, 1i प्लस 2 इंटू 1 2j प्लस 1 क्यूब इज 1 1k। तो 1 सेकेंड के बाद में वो कहाँ पे चला गया? 1, 2, 1 पोजीशन पे, 1, 2, 1 पोजीशन पे। तो कोई पाथ पे अगर कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है तो उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स टाइम के फंक्शंस होंगे। सो दिस इज वन ऑफ द वेक्टर फंक्शन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेयर एक्स इज एक्स ऑफ टी, वाई इज वाई ऑफ टी, जेड इज जेड ऑफ टी। So vector function. So if a particle is moving along a curved path, then the position vector r bar of the particle is a function of time, and so this is vector function. X coordinate is f1 function of Madam. t. Yes. समजत नाही मॅडम ती सांगितलं वेक्टरचं पाचचं. पाचचं का? समजेल समजेल. कोऑर्डिनेट्स तीन म्हणताय ती. काही नाही, माझं एवढंच म्हणणं आहे की जर पार्टिकल ट्रॅव्हल करत असेल स्पेसमध्ये, समजा ह्या पाथवरती तो ट्रॅव्हल करतोय, तर दरवेळेस त्याचा एक्स वाय झेड कोऑर्डिनेट चेंज होणार आहे आणि त्याचे कोऑर्डिनेट्स बेसिकली कशावर अवलंबून असणार आहे? समजा त्याने आता त्याचा पाथ सुरू केला, टी टाइमच्या नंतर तो टी काही पण असू शकतो, 1 सेकंडच्या नंतर इथे, 2 सेकंडच्या नंतर तिथे, इज इंटेड. तर आपल्याला काय बेसिकली इथे म्हणायचं आहे की एक्स वाय झेड जे कोऑर्डिनेट्स आहेत ते टीचे फंक्शन्स असू शकतात. याला म्हणायचं वेक्टर फंक्शन. इज दिस क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? शॅल आय प्रोसीड फर्दर? मैम एक क्वेश्चन आता होता. हाँ पूछिए. मैम अपने आप भी फॉर्मूला बताया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 क्यूब, तो मैम वो 3t क्यों नहीं होता मैम? नहीं, वो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. हाँ, एक अच्छा. आप मतलब एक एग्जाम्पल लिया है मैंने वो. अच्छा. हाँ. ओके. वेक्टर फंक्शन समझ में आया आपको? वेक्टर फंक्शन क्या रहेगा? यस मैम. कोई स्केलर वेरिएबल है तो उसका f1 f2 ft जो कि x y z कंपोनेंट्स है, तो वो कहलाएगा वेक्टर फंक्शन. अब आते हैं डिफरेंशिएशन पर. स्क्रीन विजिबल है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स दिख रहा है? यस. अब इन वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन करना है. देखिए, अगर मैं आपको कहती हूँ x ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 3t, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t कैसे निकालते हैं हम? 2t स्क्वेयर 2t प्लस 3. तो ये स्केलर फंक्शन है, ये t का स्केलर फंक्शन है. लेकिन अब वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो हम देखेंगे. तो डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी कैलकुलस के जैसा ही है, ऑर्डिनरी कैलकुलस के जैसा ही है. जैसे हम स्केलर फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, वैसे ही वेक्टर फंक्शन का करेंगे. फॉर एग्जाम्पल. मैडम? हाँ
ज्या एक्स इज इक्वल टू ती आपण टी स्क्वेअर प्लस 3t घेतलो ती स्केलर आहे का वेक्टर आहे? हे स्केलर फंक्शन आहे, याचं फक्त मॅग्निट्यूड आहे ना, याला डायरेक्शन कुठे आहे? आय जे के आहे का? आय जे के नाही आहे ना त्याला, त्याच्यासोबत आय जे के कुठे आहे? आता मी लिहिलं एक्स बार ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वेअर आय, म्हणजे त्याचा एक्स वाला कंपोनेंट टीचा टी स्क्वेअर वाला फंक्शन आहे. 2tj हा फक्त एक्झाम्पल आहे हा. टी क्यूब के एक्स डायरेक्शनचा कंपोनेंट टी स्क्वेअर, वायचा 2t, झेडचा टी क्यूब. एक्स डायरेक्शन मध्ये, पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन मध्ये टी स्क्वेयर कंपोनेंट, टी स्क्वेयर टाइम्स आई बार वेक्टर. जे डायरेक्शन में 2t टाइम्स. ये डेफिनेशन हो सकती है किसी भी पाथ की. टाइम डिपेंडेंस ऐसा है, एक्स कोऑर्डिनेट टी स्क्वेयर हो जाता है टी टाइम पे, वाई कोऑर्डिनेट 2t है सपोज दिस इज सपोजिशन. तो ये है आपका वेक्टर फंक्शन. और इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन स्केलर के जैसे ही होगा. आई एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बार ऑफ टी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बार ऑफ टी विल बी derivative of x bar of t with respect to t will be equals to, yes anyone, कोई बता सकते हैं? 2t i bar plus yes 2j yes very good plus yes 3t square. 2t टाइम्स i वेक्टर, क्योंकि t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 2t का डेरिवेटिव 2 टाइम्स j वेक्टर प्लस 3t स्क्वायर टाइम्स k वेक्टर. ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन. कुछ नहीं बट सिर्फ फंक्शन के साथ आई जे के एसोसिएट हो गए हैं. डिफरेंशिएशन हम हर कंपोनेंट को जा जाके कर रहे हैं. मॅडम हाँ विचारा. जी आय जे के आहे म्हणजे नेमकं काय आहे, त्याचं काय काम काय आहे मॅडम? आय जे के ना बेटा डायरेक्शन दाखवतायत. आयचा अर्थ आहे एक्स ॲक्सिसच्या डायरेक्शन मध्ये त्याचा डायरेक्शन आहे. मग ह्या डायरेक्शन मध्ये 2t कंपोनेंट आहे. जेचा अर्थ काय? जे म्हणजे ह्या डायरेक्शन मध्ये एक्स वाय झेड हे एकमेकाला परपेंडिक्युलर असतात. आपण एक्स वाय झेड प्लेन मध्ये आहोत. मग वाय ॲक्सिस ची डायरेक्शन जे ने डिनोट होत असते. झेड डायरेक्शन मध्ये युनिट वेक्टर के ने डिनोट होत असतो. एखादा पॉइंट आहे समजा 1, 2, 3, म्हणजे त्याचा अर्थ काय? तो पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस मध्ये 1 युनिटवर आहे. म्हणजे ही पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस घ्या आणि 1 युनिट, आणि मग त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट इथे y2 म्हणजे y वरून 2 डिस्टन्स घ्या आणि z वरून 3 घ्या, आणि तो जो पॉइंट होईल 1, 2, 3 that is 1 times I plus 2 times j plus 3 times k. Is it clear? हो मॅडम. Yes. तर आता हे जे डार्क केलेले ना त्यांनी काही बार वापरलेले नाहीत, पण ते बोल्ड करून दाखवत आहेत. बाय दिस इज डार्क, बाय डार्क वी मीन दॅट दे आर व्हेक्टर्स. इथे त्यांचा तो मेथड आहे. पण आपण कोणता मेथड अडॉप्ट करायचा? बार घ्यायचा आहे. आपण त्याच्यावरती बार टाकायची. इथे टाकलेली नाहीये, आपण मात्र टाकायची आहे. तर इथे 3 फंक्शन्स आहेत. इथे 3 फंक्शन्स आहेत. दोघांचं ॲडिशन आहे, त्यातनं जे एच सबट्रॅक्ट झालेलं आहे, तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढतो? इंडिव्हिज्युअली. एफ व्हेक्टर एफचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस जीचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस एचचा डेरिव्हेटिव्ह. हे रूल्स आहेत. जे ऑर्डिनरीमध्ये असतं ना तसंच आहे, फक्त आय जे के जशाला तसे राहतात. ते फक्त डायरेक्शन डिनोट करत आहेत. आता हा सेकंड फॉर्म्युला बघा. एफ फाय, एफ डार्क दिलेला आहे आणि त्याच्यासोबत फाय आहे. तर एफ फाय म्हणजे काय? फाय हा एक स्केलर फंक्शन आहे आणि एफ हा एक वेक्टर फंक्शन आहे. त्यांचा प्रॉडक्ट हा एक वेक्टर फंक्शनच असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल
फाय मी 2t घेतलं आणि एफ बार मी घेतलं t/2i प्लस 3tj झेड कंपोनेंट समजा t²k घेतलं तर फाय इंटू एफ बार कसं करणार 2t सगळ्यांना देऊन टाकायचं तर तो पण एक वेक्टरच असणार आहे. फाय इंटू एफ बार इज वेक्टर. आता त्याचं डेरिव्हेटिव्ह हे आपल्याला वापरायचं आहे, थोडंसं व्यवस्थित समजून घ्या. फाय इंटू एफ बार हा पण एक वेक्टर असणार आहे आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह मग कसा काढणार. मग आधी वेक्टर फंक्शनला ॲज इट इज ठेवा, स्केलारचा डिफरन्शिएशन परफॉर्म करून घ्या प्लस फाय तसाच ठेवा, वेक्टर फंक्शनचा डिफरन्शिएशन परफॉर्म करून घ्या. यू इंटू व्ही रूल सारखा वेक्टर फंक्शन ॲज इट इज ठेवा, स्केलारचा डिफरन्शिएशन करा प्लस स्केलारचं वेक्टरचं डिफरन्शिएशन करा, स्केलारनी मल्टिप्लाय करा फक्त. आता डॉट प्रोडक्ट, दोन वेक्टर आहेत, दोघांचा डॉट प्रोडक्ट आहे आणि त्याचं डिफरन्शिएशन परफॉर्म करायचं आहे. तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वन फंक्शन डॉट प्रोडक्ट विथ अनदर फंक्शन. आता इथे डॉट आलेला आहे, रिमेंबर हा डॉट इथे नाही घेऊ शकत आपण. एक स्केलार फंक्शन आणि एक वेक्टर फंक्शनमध्ये डॉट प्रोडक्ट किंवा क्रॉस प्रोडक्ट नसतं, फक्त अल्फा टाइम्स एफ बार म्हणतो आपण. पण इथे दोन फंक्शन आहेत, दोन्ही वेक्टर फंक्शन आहेत, त्यात डॉट प्रोडक्ट आहे आणि डॉट प्रोडक्टचं डिफरन्शिएशन परफॉर्म करायचं आहे. तर तो कसा करतो आपण, एकाचा डेरिव्हेटिव्ह घेतो, तो पण एक वेक्टर असणार आहे, त्याचा दुसऱ्यासोबत डॉट प्रोडक्ट प्लस दुसऱ्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं डॉट प्रोडक्ट विथ पहिला वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्टचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं तर पहिला फंक्शन ॲज इट इज ठेवायचा, दुसऱ्याचं डिफरन्शिएशन घेऊन पहिल्यासोबत क्रॉस प्रोडक्ट प्लस दुसऱ्याचं डेरिव्हेटिव्ह क्रॉस प्रोडक्ट विथ जी. पोझिशन चेंज करायची नाही, पोझिशन चेंज करायची नाही. आपल्यासाठी एवढे 4 फॉर्म्युले सफिशियंट आहे. पहिले 4 फॉर्म्युले समजले का सगळ्यांना. वेक्टर फंक्शनचा डिफरन्शिएशन हा ऑर्डिनरी फंक्शन सारखाच केला जातो, फक्त डॉट प्रोडक्ट आणि क्रॉस प्रोडक्टसाठी तिसरा आणि चौथा फॉर्म्युला व्यवस्थित समजून घ्या. मॅडम परत एकदा सांगा ना थर्ड आणि फोर्थ फॉर्म्युला. येस, हे बघा, एफ आणि जी मध्ये डॉट प्रोडक्ट आहे, हा एक वेक्टर फंक्शन आहे, हा दुसरा वेक्टर फंक्शन आहे, दोघात डॉट प्रोडक्ट आहे. डॉट प्रोडक्टचा डिफरन्शिएशन कसा परफॉर्म होईल, तर आधी एक फंक्शन ॲज इट इज राहू द्या, दुसऱ्याचा डिफरन्शिएशन करून त्याच्यासोबत डॉट प्रोडक्ट घ्या प्लस जी फंक्शन ॲज इट इज राहू द्या, एफचा डेरिव्हेटिव्ह घेऊन तो एक नवीन वेक्टर फंक्शन आहे, त्याच्यासोबत डॉट प्रोडक्ट घ्या. ह्या डॉट प्रोडक्टचा आपण रिझल्टंट स्केलार, ह्या डॉट प्रोडक्टचा आपण रिझल्टंट स्केलार. स्केलार प्लस स्केलार इज स्केलार क्वांटिटी. डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलार इज स्केलार. क्रॉस प्रोडक्टमध्ये एफ ॲज इट इज ठेवला, आधी जीचा डिफरन्शिएशन केला, क्रॉस प्रोडक्ट घेतला दोघांमध्ये प्लस नंतर एफचा डेरिव्हेटिव्ह घेऊन जी सोबत क्रॉस प्रोडक्ट घेतला आणि ह्याचा रिझल्टंट व्हेक्टर, ह्याचा रिझल्टंट व्हेक्टर आणि दोघांची ॲडिशन पण व्हेक्टर असणार आहे. दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 व्हेक्टर्स, अगेन अ व्हेक्टर फंक्शन. This is how we have to perform differentiation of vectors. Is this clear, dear students? Shall I proceed further? Yes, shall I proceed further?
Yes, ma'am. Any questions? तर इथे पण डिफरन्सिएशन ऑफ वेक्टर्स दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. समजा एक पार्टिकल आहे, तर त्याची पोझिशन P आहे आणि तो P ते Q त्याचं मूव्हमेंट होत आहे. Suppose a particle is moving from point P to point Q along the path PQ. तर ओरिजिनला जॉईन केल्याच्या नंतर हा त्याचा पोझिशन वेक्टर झाला पीचा आर बार प्लस डेल्टा आर बार हा क्यूचा पोझिशन वेक्टर झाला. तर पी ते क्यू जाताना समजा आपण टाइम खूप कमी केला, तर हा जो कॉर्ड आहे पी क्यू समजा जवळ आहे, ही कॉर्ड नुसती टँजंट बनून जाते. ऑल ऑफ यू ॲग्री? पी पासून ते क्यू पर्यंत गेलं, आपण कॉर्डनी त्यांना जॉईन करू शकतो. पण मला म्हणायचं आहे पी आणि क्यू जर खूप जवळ आले, ते जवळ कधी येतील? जेव्हा मी खूप कमी टाईमसाठी त्याचं मोशन कन्सिडर करते. तर वेन टी टेंड्स टू 0 म्हणजेच डेल्टा टी खूप छोटा आहे, तर क्यू पीच्या जवळ असेल, मग त्या केसमध्ये डी आर बार बाय डी टी इज रिप्रेझेंटिंग टँजंट. कॉर्ड बिकम्स टँजंट. तर आर जर पोझिशन वेक्टर असेल फॉर अ पार्टिकल विच इज ट्रॅव्हलिंग अलॉंग द पाथ, आर बार त्याचं पोझिशन वेक्टर असेल, तर डी आर बार बाय डी टी इट डिनोट्स टँजंट ॲट द पॉइंट पी. हा झाला याचा फिजिकल सिग्निफिकन्स. वेक्टर फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आर बार त्याचा पोझिशन वेक्टर होता, म्हणजे आर बारची काही डेफिनेशन असेल, जसं मी घेतलं t² i + 2tj, ह्या पाचचा तो डेफिनेशन आहे. तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय होईल? त्या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाईमवरती जो पॉइंट आहे तिथलं टँजंट. सो डी आर बार बाय डी टी represents tangent at the point P when the particle is traveling from point P towards Q along the path whose definition is given by r bar. d2 r bar by dt square will give you second order चा derivative. तर dr bar by dt gives velocity. तो ट्रॅव्हल करतोय ना, तर त्याची व्हेलॉसिटी माहीत पडेल आपल्याला, लिनियर वाली व्हेलॉसिटी. आणि सेकंड ऑर्डरचा डेरिव्हेटिव्ह आर बारचा हे वेक्टर डिफरन्सिएशन आहे, ते ॲक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ॲट पॉइंट पी देणार. म्हणून हे सगळं आपण शिकतोय. शॅल आय प्रोसीड फर्दर डिअर स्टुडंट्स? हे फक्त तुमच्या माहितीस्तव आहे. आता पुढचा पॉइंट घेऊ आपण, स्केलार आणि वेक्टर फंक्शन्स. स्केलार अँड वेक्टर पॉइंट फंक्शन्स. तो पॉइंट फंक्शन म्हणजे काय? प्रत्येक पॉइंटला स्पेसिफिक व्हॅल्यू देत असेल एखादा फंक्शन, तर त्याला म्हणायचं पॉइंट फंक्शन. दोन प्रकारचे पॉइंट फंक्शन्स आहेत. जर प्रत्येक पॉइंटला, स्पेसच्या प्रत्येक पॉइंटला एखादा स्केलार करस्पॉन्ड करत असेल, युनिक स्केलार, पॉइंट स्पेसिफिक, पी पॉइंटसाठी त्याची व्हॅल्यू एवढी, क्यू साठी त्याची व्हॅल्यू सो अँड सो, प्रत्येक पॉइंटसाठी त्याची व्हॅल्यू युनिक असेल. म्हणजे असं नाही की एक पॉइंटसाठी दोन व्हॅल्यूज असणार. तर इफ टू इच पॉइंट पी ऑफ अ रिजन आर इन स्पेस देअर करस्पॉन्ड्स अ युनिक स्केलार एफ ऑफ पी, देन एफ इज कॉल्ड अ स्केलार पॉइंट फंक्शन. पॉइंट स्पेसिफिक आहे ना ते, आणि त्याची व्हॅल्यू स्केलार क्वांटिटी आहे, म्हणून त्याला म्हणायचं स्केलार पॉइंट फंक्शन. इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्युशन इन हीटेड बॉडी. एखाद्या बॉडीला हीट केलं तर त्याचं टेम्परेचर पॉइंट स्पेसिफिक असेल, ह्या पॉईंटवरती एवढा टेम्परेचर, त्या पॉईंटवरती तेवढा टेम्परेचर अँड सो ऑन. तर हे स्केलार पॉइंट फंक्शन्स आहेत. एक्झाम्पल,
वेक्टर पॉइंट फंक्शन म्हणजे काय? स्पेसच्या प्रत्येक पॉइंटला एक वेक्टर असोसिएट केला आपण, युनिक वेक्टर, प्रत्येक पॉइंटला पॉइंट स्पेसिफिक वेक्टर असोसिएट केला तर त्याला म्हणायचं वेक्टर पॉइंट फंक्शन. इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे, व्हेलॉसिटी ऑफ अ मूव्हिंग फ्लुइड, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आर एक्झाम्पल्स ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या संदर्भात मला म्हणायचं आहे, समजा मूनवर जे जातात त्यांच्यावर ग्रॅव्हिटी ॲक्टच होत नाही, कारण तिथपर्यंत त्याचा इम्पॅक्टच नसतो. सो इट इज व्हॅरिंग फ्रॉम पॉईंट टू पॉईंट. जर आपण सरफेस ऑफ अर्थवरती आहोत तर आपल्यावर ग्रॅव्हिटी ॲक्ट करते, आपल्यावर त्याची इंटेन्सिटी वेगळी आहे, आपण एक पॉईंट आहे. तसंच मून पण एक पॉईंट आहे, तिथे तर ग्रॅव्हिटी नाहीच आहे. सो इट इज पॉईंट स्पेसिफिक. अँड इफ दॅट पॉईंटला जर आपण एक वेक्टर क्वांटिटी असोसिएट करतोय तर ते वेक्टर पॉइंट फंक्शन. इतकं सोपं आहे. इज दिस क्लिअर? पुढे जायचं का? एनी क्वेश्चन्स? मॅम ग्रॅव्हिटी का नसते तिकडे मूनवर? ग्रेविटेशनल फोर्स हा अर्थचा है. जब अर्थ से हम दूर दूर जाते तो वो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है ना. दो मैग्नेट्स है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, दोनों मैग्नेट जैसे ही नजदीक आते हैं वो फोर्स बढ़ता है, दूर होंगे तो इफेक्ट कम होता है मैग्नेटिक फोर्स का. वैसे ही अर्थ का भी है. अर्थ के सतह पे जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनको वो पकड़ कर रहती है, लेकिन जैसे हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के आगे चले जाते हैं स्पेस में तो उसका इफेक्ट होता ही नहीं, फिर वो हवा में ऐसे ही ये होते रहते हैं. स्पेस क्राफ्ट में देखा होगा ना आपने, कल्पना चावला को वीडियोस देखे होंगे ना, वो कैसे फ्लोट करते हैं उनकी स्पेस शिप में. मैम तो वो भी एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन ही है. मतलब जैसे पॉइंट चेंज हुआ उसकी वैल्यू चेंज हो गई. अगर पॉइंट टू पॉइंट वेक्टर एसोसिएट कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी, तो वो वेक्टर फंक्शन है. पॉइंट टू पॉइंट स्केलर एसोसिएट कर रहे हैं तो स्केलर फंक्शन है. एज सिंपल एज दैट. आगे बढ़ना है. Shall I proceed further, dear students? Any questions? आवडतंय का हा टॉपिक? पसंत मॅडम आला? समजत नाही. इतकं अवघड नाहीये, पुढे सोपं आहे. हे सगळं तुम्हाला एक थोडंसं त्याचं ऍप्लिकेशन काय आहे हे दाखवण्यासाठी डिटेलमध्ये घेतेय. याचा अजिबात तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. स्केलर पॉइंट फंक्शन आणि वेक्टर पॉइंट फंक्शनची डेफिनेशन समजली का? पॉइंटला स्केलर असोसिएट केलं तर ते स्केलर पॉइंट, पॉइंटला वेक्टर असोसिएट केलं तर वेक्टर पॉइंट फंक्शन. Shall I proceed further, dear students? Yes, ma'am. Yes. थैंक यू. अभी यहाँ पर फिर से मैंने स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शंस को लिखा है. यहाँ पर क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई जेड एक फंक्शन है जो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है और एक्स वाई जेड टी पे डिपेंड कर रहा है. तो वेरिएबल्स का डिपेंडेंस देखने का कोशिश कीजिए. ये जो एफ है वो किन पर डिपेंड कर रहा है? एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, है ना, बट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स तो टाइम के साथ चेंज होते हैं. तो ये ट्री डायग्राम वेरिएबल्स का कैसे बनेगा? एफ डिपेंड्स ऑन एक्स, एक्स डिपेंड्स ऑन टी, एफ डिपेंड्स ऑन वाई, वाई डिपेंड्स ऑन टी, एफ डिपेंड्स ऑन जेड एंड जेड डिपेंड्स ऑन टी. इसको आप, इस कंसेप्ट को आप ड्रॉ कीजिए. कैसे करोगे? F is depending on x, y, z and these all three are depending on t. तो मुझे अगर
f का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t चाहिए, इसे कहते हैं कंप्लीट डेरिवेटिव। किसी एक वेरिएबल का किसी 3 अन्य वेरिएबल, मिनिमम दो पर डिपेंडेंस, और उन तीनों का किसी एक पर। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला केवल एक के साथ भी चेंज हो सकता है। XYZ कोऑर्डिनेट्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं और f XYZ के साथ चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली f का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू t देखना है अगर आपको, तो यहां पर आ जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। पार्शियल डिफरेंशिएशन, f सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड होता, ध्यान से सुनिए, f सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंडेंट होता तो हम लिखते df बाई dx, मतलब f का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अब f सिर्फ x पर डिपेंडेंट नहीं है और दूसरे भी वेरिएबल्स हैं जिन पे वो डिपेंड कर रहा है, तो वहां पर आ जाएगी पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात। जस्ट गिव मी अ मिनिट। 1:30 वाजता आहे, लेक्चर सुरू आहे मध्ये, हे आत्ता आणून दिले त्यांनी, 1:30 वाजता आहे। चालेल चालेल, हां माझे मी 1:30च्या नंतरच, 11 ते 1:30 माझं लेक्चर असतं। मॅम बस झालं। अरे वेळ नाही झाला ना राजा, आता तर आपण ॲक्च्युअल टॉपिक पण नाही सुरू केलंय। तुम्हाला कालचं रिव्हिजन पाहिजे होतं ते केलं आणि अभी तो टॉपिक शुरू करना है। मैम खाना खाना है। अभी तो लेक्चर रहता था ना आपका। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हमें थोड़ा सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर पेट को चॉकलेट खा लो, थोड़ी कैलोरीज मिल जाएगी, है ना। तो f केवल x पे डिपेंड नहीं कर रहा है और उसके उस एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे वो डिपेंड कर रहा है। चेंज तो सभी हो रहे हैं, लेकिन बात डिपेंडेंस की है। तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर अगर फंक्शन डिपेंड कर रहा है तो उसके डेरिवेटिव पार्शियल वाले होते हैं और उनको डिनोट करते हैं डो से। डो f बाय डो x, डो f बाय डो y, डो f बाय डो z। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x, partial derivative of f with respect to y and partial derivative of f with respect to z। तो देखा जाए तो f तीनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो तीनों एक पे जाके डिपेंड कर रहे हैं। तो f का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t ऑर्डिनरी होगा df बाई dt। थोड़ी देर और थोड़ा सहन कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास स्कोप नहीं है कि हम वो लिबर्टी ले कि वी स्टॉप हियर, वो लिबर्टी नहीं है अभी हमारे पास। प्लीज़ थोड़ा सा टॉलरेट कीजिए, थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट खा लीजिए, कुछ पानी पी लीजिए, इशारों से मम्मी को बता दीजिए, कुछ लाकर दे देंगी वो। सुनना तो है आपको, नोट्स तो मैंने देनी है आपको। तो f का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t ऑर्डिनरी होगा, और वो कैसे निकालेंगे? f का विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू x का विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस f का विथ रिस्पेक्ट टू y इंटू y का विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस f का विथ रिस्पेक्ट टू z इंटू z का विथ रिस्पेक्ट टू t। तो f तीनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए डो वाले आएंगे, डो f बाय डो x। लेकिन x सिर्फ t पे डिपेंडेंट है, इसलिए उसका d आएगा। डो f बाय डो y इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस डो f बाय डो z इंटू डी जेड बाई डी टी इज डी एफ बाई डी टी। Ordinary derivative of f with respect to t is partial derivative of f with respect to x into ordinary derivative of x with respect to t plus partial derivative of f with respect to y into y का derivative with respect to t plus dou f by dou z into dz by dt। तो अगर आप इसको देखेंगे तो f का डेरिवेटिव क्या है?
विथ रिस्पेक्ट टू टी है ना, तो वो डी टी वाला अगर आपने सिर्फ कंसीडर नहीं किया या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डी टी किया तो आपको ये मिल रहा है। अब इसे आप डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। इनमें से ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर में से एफ कॉमन लिया, ठीक है, तो इसमें आई डो बाय डो एक्स प्लस जे डो बाय डो वाई प्लस के डो बाय डो जेड इन डॉट प्रोडक्ट विथ आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, आई डो बाय डो एक्स प्लस जे डो बाय डो वाई प्लस के डो बाय डो जेड। ये हो गया आपका वेक्टर ऑपरेटर। वेक्टर ऑपरेटर इसलिए क्योंकि उसमें आई जे के है, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, आई डी एक्स प्लस वाई जे डी वाई प्लस के डी जेड से डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो वो क्या आएगा, ये आएगा। तो इस ऑपरेटर को आप डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो, ये ऑपरेटर का, इस ऑपरेटर का और इस ऑपरेटर का। इस ऑपरेटर को डेल कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर डेल, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है। वेक्टर डिफरेंशिएशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर। ये इस उल्टे डेल्टा को डेल कहते हैं, नैबला भी कहते हैं, ठीक है। तो डेल डॉट डी आर बार, डेल डॉट डी आर बार, आर बार अगर, पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स, आर बार अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो तो डी आर बार इज स्मॉल चेंज इन द पोजिशन वेक्टर डी एक्स टाइम्स आई प्लस डी वाई टाइम्स जे प्लस डी जेड टाइम्स के, rate of change of position vector. So this is r bar dot dr bar dot del dot dr bar on f. So this operator is called differential operator, vector differential operator. वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, उसको नैबला भी कहते हैं। और उस ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है, आई डो बाय डो एक्स प्लस जे डो बाय डो वाई प्लस के डो बाय डो जेड, मतलब पार्शियल जो फंक्शन होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टाइम्स वेक्टर आई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई टाइम्स वेक्टर जे प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड टाइम्स वेक्टर के। डेल ऑपरेटर की डेफिनेशन समझ में आ गई। डिफरेंशिएशन करते हैं इसलिए डिफरेंशियल ऑपरेटर कहा है, उसमें वेक्टर्स हैं आई जे के, इसलिए वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहा है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ू मैं। डेल ऑपरेटरची व्याख्या समजली का? जायचं का पुढे आता? हो मॅम. Yes, very good. Thank you. Gradient of a scalar function. Gradient of a scalar function. Gradient एक कंसेप्ट है, स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइंड है, इसीलिए उसे कहा गया है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। सपोज कीजिए फाई कोई स्केलर फंक्शन है, फाई फंक्शन जो डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड पर, वो कोई स्केलर फंक्शन है। मतलब मैं उसको ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक्स वाई जेड प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वेयर, ये फाई फंक्शन लिखा मैंने। फाई फंक्शन है एक्स वाई जेड का क्योंकि वो एक्स वाई जेड के टर्म्स में डिफाइन किया गया है, तो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन ले लिया मैंने। और मुझे तो मैं डिफाइन करना चाहती हूँ इस फंक्शन का ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन इज डिफाइंड एज आई डो फाई बाय डो एक्स प्लस जे डो फाई बाय डो वाई प्लस के डो फाई बाय डो जेड।
सो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। देखिए फाई तो स्केलर था, जब उस पर ग्रेडियंट उसका ग्रेडियंट लिया तो वो वेक्टर है, वो वेक्टर है। तो ग्रेड फाई से भी डिनोट होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई। इट इज आई डो फाई बाय डो एक्स प्लस जे डो फाई बाय डो वाई प्लस के डो फाई बाय डो जेड। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऑपरेटर है ना डेल, जिसके बारे में अभी बता रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। डेल ऑपरेटर अगर आपने स्केलर पॉइंट फंक्शन पे ऑपरेट किया तो वो ग्रेडियंट कहलाता है उसका। दिस इज GRAD ग्रेडियंट कहलाता है, और उसका रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका आयत कंपोनेंट रहेगा डो फाई बाय डो एक्स, जेथ कंपोनेंट रहेगा डो फाई बाय डो वाई, केथ कंपोनेंट रहेगा डो फाई बाय डो जेड। तो ग्रेडियंट स्केलर के लिए डिफाइंड है, ग्रेडियंट का रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेडियंट ऑफ फाई इज nothing but operating del operator on the phi function, where del is I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z. So grad phi is I dou phi by dou x plus j dou phi by dou y plus k dou phi by dou z. Any questions dear students? ग्रेडियंट कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन दे दूँ तो उसका ग्रेडियंट निकाल पाओगे आप? आपको केवल उस फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड निकालना है, और उनको आई जे के एसोसिएट कर देने हैं, और तीनों की एडिशन होगी ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई। जैसे कि सपोज अब आपको यहाँ पर ये सीखना होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे परफॉर्म करते हैं। ये एग्जाम्पल ले लीजिए, ये फंक्शन है, तो फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे निकालेंगे हम? पहली टर्म ले लो, तीनों में एडिशन है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ द थर्ड फंक्शन। पहले फंक्शन का कैसे निकालेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डो फाई बाय डो एक्स इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वो निकालने के लिए y, z और उनके फंक्शंस को कांस्टेंट अज्यूम करते हुए x के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है। x, y, z एज इट इज़ रहेंगे, x के कोएफिशिएंट्स बन जाएंगे वो, तो ax के जैसा होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ax विल बी a जशाला तसं x चा डेरिवेटिव इज 1, एक्सचा डेरिवेटिव इज 1। तर पहिल्या टर्मचा पार्शियल डेरिवेटिव आपण काढलेलं आहे, अँड दॅट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जेड इज वाई जेड। वैसे ही अब प्लस 2xy का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे निकालोगे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2xy विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 और y ये कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है x के, 2y को कांस्टेंट अज्यूम करते हुए x का डेरिवेटिव 1, तो दिस इज 2y। डो बाय डो x चलाना 2xy पर, आंसर इज 2y। z स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा? z इज अ कांस्टेंट व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो z square is a constant, derivative of a constant is 0. So phi चा partial derivative with respect to x is equals to xyz चं किती आलं? yz, 2xy चं किती आलं? 2y, z स्क्वेअर चा किती आला? 0. हे झालं फक्त पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कसं काढणार? पहिल्या टर्मचा विथ रिस्पेक्ट टू y त्याला असं पण डिनोट करतात, फाय सफिक्स y, फाय सफिक्स y ने पण डिनोट करतात। चला फाय y काढा,
क्यों है डो फाय बाय डो वाय पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फाय पहिल्या टर्मचा विथ रिस्पेक्ट टू वाय पार्शियल डिफरन्सिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाय XZ. व्हेरी गुड एक्स झेड दुसऱ्या टर्मचं विथ रिस्पेक्ट टू झेड Y ना मॅम. किती येणार हा विथ रिस्पेक्ट टू वाय सॉरी 2X. वेरी गुड जेड स्क्वेयर का विथ रिस्पेक्ट टू वाय 0. व्हेरी गुड परफेक्ट डो फाय बाय डो वाय ची किंमत इज एक्स झेड प्लस 2x प्लस 0 सो दॅट इज एक्स झेड प्लस 2x फाय झेड काढा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फाय विथ रिस्पेक्ट टू झेड पहली टर्म XY प्लस एक्स वाय पहली टर्म का एक्स वाय प्लस दूसरी टर्म का Z. दूसरी टर्म का 2Z. 2xy चा विथ रिस्पेक्ट टू झेड 0. 0 व्हेरी गुड झेड स्क्वेअरचा 2Z. परफेक्ट डो फाय बाय डो झेड इज एक्स वाय प्लस 2z very good so this is about partial differentiation of a function which is a scalar function phi generally scalar function phi से denote होते हैं तो इसमें भी वही बोला है कि डेल ऑपरेटर जब स्केलर पॉइंट फंक्शन पे लगाते हैं तो उसे ग्रेडियंट कहते हैं डेल ऑपरेटर जब स्केलर पॉइंट फंक्शन पे लगाते हैं तो उसे ग्रेडियंट कहा जाता है ग्रेडियंट ऑफ फाई डेल फाई इज आई यहाँ पर कैपिटल आई मतलब आई कैप या आई बार आई डो एफ बाय डो एक्स प्लस जे डो एफ बाय डो वाई प्लस के डो एफ बाय डो जेड अब हम ग्रेडियंट क्यों सीख रहे हैं मतलब वाई वी आर डूइंग दिस तो इसका यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ एक सतह है सरफेस एक सतह है सपोज आप एक रेक्टेंगुलर सरफेस को अज्यूम कीजिए 3 डायमेंशनल स्पेस में एक रेक्टेंगुलर सरफेस ठीक है तो उस सरफेस की डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सी अब इस सरफेस पे जो भी पॉइंट्स है उनके लिए सेम रहेगा definition if a surface be drawn through any point such that each point on it the function has the same value as at p ये एक सरफेस लिया हर पॉइंट पर सेम वैल्यू है दूसरे के जैसी है then such a surface is called a level surface of the function f through p एक सरफेस है उस पर कोई फंक्शन एसोसिएटेड है और वो फंक्शन ऐसा एसोसिएटेड है कि हर उस सरफेस के हर पॉइंट के लिए सेम वैल्यू है जैसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं हम हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है तो एक दूसरा पॉइंट ले लिया दूसरे सरफेस का ठीक है तो वहाँ पर अलग रहेगा फंक्शन का वैल्यू लेकिन जब हम उनका डिस्टेंस कम कर देंगे वही मेथड है वो सपोज बहुत नज़दीक है तो फिर उस केस में ग्रेडियंट ऑफ एफ इज़ अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ये नोट डाउन कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स ग्रेडियंट का क्या महत्व है तो कोई सरफेस अगर है कोई सरफेस है तो उसको जो भी नॉर्मल होता है अब सरफेस आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है तो ये पॉइंट पे नॉर्मल ऐसी जा रही है हो सकता है इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसी निकलेगी इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसी जाएगी वी नेवर नो हर पॉइंट पे नॉर्मल मतलब वहाँ से निकलने वाला एक परपेंडिकुलर रे तो वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगा तो ग्रेडियंट ऑफ एफ का क्या सिग्निफिकेंस है ग्रेड एफ इज अ वेक्टर normal to the surface f is equal to constant and has a magnitude equal to rate of change of f along this normal तो gradient का अर्थ होता है अगर कोई surface है
जैसे की स्पियर का सरफेस ले लो, सतह. स्पियरचं डेफिनेशन काय असतं? हॉलो स्पियर, वरचं. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेअर. तर ग्रॅडियंट ऑफ एफ वेअर एफ इज अ स्पियर, म्हणजेच त्या स्पियरच्या प्रत्येक पॉईंटवरतून जे नॉर्मल निघतं ते असतं ग्रॅड फाय. फाय इज इक्वल टू सी. हे जर तुमचं स्पियर असेल तर ग्रॅड फायचा अर्थ काय असेल? प्रत्येक पॉईंटवरतून निघणारा नॉर्मल. पॉईंट स्पेसिफिक असतं ना, या पॉईंटवरून नॉर्मल असं आहे, त्या पॉईंटवरून नॉर्मल तसं आहे. तर ग्रॅड फाय डिनोट्स नॉर्मल टू द सरफेस. फाय इज इक्वल्स टू कॉन्स्टंट और एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. म्हणून आपण त्याला शिकतोय, नाहीतर कशाला शिकायचं? तर हे अर्थ आहे. ग्रॅडियंट इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस. फाय इज इक्वल टू सी. एखाद्या सरफेसची डेफिनेशन जर फाय इज इक्वल टू सी असेल तर त्याच्यावरून एखाद्या पॉईंटवरतून निघणारा नॉर्मल म्हणजे ग्रॅड फाय. एग्जाम्पल. ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में आएंगे. अभी तक मैंने आपको सब समझाया, अब ये एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में आएंगे. इफ फाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द पॉइंट 1, -2, -1. क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए. फाई ये स्केलर फंक्शन है या वेक्टर फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स? स्केलर फंक्शन है, क्योंकि उसमें आई जे के है ही नहीं. फाई डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड पर, क्योंकि वो एक्स वाई जेड के टर्म्स में उसकी डेफिनेशन है. तो इस स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए ग्रैड फाई निकालना है इस स्पेसिफिक पॉइंट पर. तो बढ़ते हैं आगे. ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे. ग्रेडियंट ऑफ फाई मतलब डेल ऑपरेटिंग ऑन फाई. डेल ऑपरेटिंग ऑन फाई, ये डेल ऑपरेटर और ये फाई फंक्शन. फाई फंक्शन तीनों ऑपरेटर्स को दे दो. डो बाय डो एक्स को दिया, डो बाय डो वाई को दिया, डो बाय डो जेड को दिया. अब पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. 3x स्क्वायर वाई, 3 इंटू वाई कॉन्स्टेंट रहेंगे, एक्स स्क्वायर के कोइफिशिएंट. हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. 3y एज इट इज रहेगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. सो 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज 6xy. पहिल्या टर्मचं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 6xy. वाई क्यूब जेड स्क्वेअरचा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किती होईल? 0, क्योंकि उसमें x है ही नहीं, तो वो कांस्टेंट है जब आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो. तो डो बाय डो एक्स ऑफ 3x स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वेयर इज 6xy प्लस जे याचाच पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई. मैम आवाज ब्रेक होता है. मैम आवाज ब्रेक हो रही है. ठीक है, अभी आ रही है ठीक से? एम आई ऑडिबल डियर स्टूडेंट्स? यस 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 मैम. Yes, ma'am. यस. पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स समझ में आ गया सभी के? अब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालते हैं. मैम ब्रेक होतो आवाज. मैम पुन्हा ब्रेक होतोय. नेटवर्क प्रॉब्लम. अभी तो लैन से कर रहे हैं हम, लैन की कैसे प्रॉब्लम है? हाँ, अभी आ रही है ठीक से? एम आई ऑडिबल डियर स्टूडेंट्स? हेलो, एम आई ऑडिबल? मॅम नॉर्मल बोलताना तुमचा आवाज येतो पण शिकवताना ब्रेक होतो. ठीक है, अभी देखिए ये 5 फंक्शन दिया है
इसका ग्रेडियंट निकालना है तो आप स्टेप वाइज भी जा सकते हैं, एक एक करके। फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना, साइड में रखना। फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालना, साइड में रखना। फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड निकालना और साइड में रखना। वो निकालने के बाद में आई डो फाई बाय डो एक्स प्लस जे डो फाई बाय डो वाई प्लस के डो फाई बाय डो जेड बना लेना। तो दैट इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ फाई फंक्शन। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वेयर इज 6xy, ये हमने कर लिया था। अब उसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू y लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? 3x स्क्वेयर y का पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू y 3x स्क्वेयर इंटू 1। y के ये कोएफिशिएंट है और y का डेरिवेटिव 1, 3x स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू y जेड स्क्वेअर जशाला, येस जेड स्क्वेअर कोएफिशिएंट असणार y क्यूबचा, जेड स्क्वेअर जशाला तसं 3y स्क्वेअर होईल y क्यूबचं, 3y स्क्वेअर इंटू जेड स्क्वेअर विथ अ मायनस साइन, ते मायनस साइन ॲज इट इज। आता त्याच फंक्शनचा विथ रिस्पेक्ट टू झेड काढा। 3x स्क्वेअर वायचा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू झेड 0 माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वेयर का माइनस वाई क्यूब एज इट इज जेड स्क्वेयर का 2z। तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z इज माइनस 2y क्यूब z। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म हो चुके हैं। ग्रेडियंट ऑफ फाई इस स्पेसिफिक पॉइंट पे ढूंढना है। पॉइंट फंक्शन आहे तो पॉइंट टू पॉइंट व्हॅरी होतो। तर हे बघा, फाय हा स्केलार होता, त्याचा ग्रेडियंट हा व्हेक्टर क्वांटिटी व्हेक्टर फंक्शन आलेला आहे। त्या व्हेक्टर फंक्शनचा एक्स कंपोनेंट हा आहे, वायथ कंपोनेंट हा आहे आणि हा त्याचा झेड कंपोनेंट आहे। आणि आता त्या पॉईंटवरती काढायचा आहे। हा एक्स कोऑर्डिनेट आहे त्या पॉईंटचा, हा वाय कोऑर्डिनेट आहे आणि हा झेड कोऑर्डिनेट आहे। मग ते पॉईंट इथे सबस्टिट्यूट करायचेत। एक्सच्या जागी 1 ठेवलं, वायच्या जागी -2 ठेवलं, एक्सच्या जागी पुन्हा 1चा स्क्वेअर 1, वायचा स्क्वेअर, वायची किंमत -2 आहे, -2चा स्क्वेअर इज 4, झेड इज -1, -1 का स्क्वेअर इज 1, -2 वायचा क्यूब, -2चा क्यूब, -2चा क्यूब इज -8 अँड झेड इज -1। तर हे मल्टिप्लिकेशन घेतलं, 6 इंटू 1 इंटू -2 इज -12i, -12i, दिस इज 3 - 12, 3 - 12 is -9j, minus into minus into minus, 3 minus signs, that is -16k. So this is gradient of phi function at the point 1, -2, -1. Is this clear dear students? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे। मैम रिपीट क्वेश्चन। हॅलो मॅम, जे घेतलं म्हटलं ते जे घ्यातलं का म्हटलं मायनस पाहिजे नाही तर पुन्हा विचारा। ते जे कॅप घेतलं म्हटलं तिथे कैप का? मुझे आवाज तो नहीं आ रही आपकी।